Today in this class, we are done with the introduction part. Okay, we are done with the introduction part. तीन चार classes में I've given you enough information about what an HR is and how it functions. Okay, what is the use of HR department in the organization? From this class onwards, we will start what are the various HR activities. Okay, आप कितना भी introduction पढ़ लेंगे फिर भी आपको ठीक से समझ में नहीं आएगा. But gradually, when you start studying activities, you will come to know कि HR कैसे काम करती है और HR का main काम क्या होता है. So there are few activities that I have just segregated जो आपको HR workshop में पढ़ना है. Not everything, but the main activities that an HR carries on. The first one and the most important one is the recruitment and selection. We will start with this. Recruitment and selection. Any one of you, do you know the process of any exam, common exam? कैसे कैसे होता है? No, not like that. There are different processes for different recruitments, different for private sector, different for different government exams, different from exams that you are giving in Air Force, different for exams that you're giving in Bihar Military Police. So it's different. The process is not fixed and defined. But do you know the process of bank PO? क्या होता है? Start से बताइए. पहले फॉर्म फिल किया जाता है, उसके बाद कोई भी आईपीएस या कोई भी बैंक अपने नोटिफिकेशन जाएगा कि इतना रिक्रूटमेंट होगा इससे, तो उसके अकॉर्डिंग टू एलिजिबिलिटी उसका क्राइटेरिया जो बता होता है वो कौन फिल कर सकता है कौन नहीं. फिर उसके बाद फॉर्म फिलअप करने के बाद दो एग्जाम होता है. पहला प्री होता है, उसमें जिसका कट ऑफ पार हो जाता है वो मेंस के लिए क्वालिफाई होता है, जो नहीं होता है उसका फिर नेक्स्ट टाइम. फिर मेंस के बाद फिर उसमें जिसका कट ऑफ लिस्ट आता है उसमें हो जाता है फिर इंटरव्यू के बाद ट्रेनिंग. इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू के बाद ट्रेनिंग कैसे होगा? इंटरव्यू के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट होगा, राइट? जितने लोग मेंस का एग्जाम क्लियर किए सबका सिलेक्शन हो जाता है? नो. Then there will be a final merit list, and then out of that merit list, few people are in the final merit list, and even after keeping aside that merit list, there is one reserve list, right? There is a reserve list. Why is there a reserve list? This is for selection. Okay. Do you know the difference between recruitment and selection? रिक्रूटमेंट डायरेक्ट होता है और सिलेक्शन में डिवाइड, जैसे लोगों के बीच में सेलेक्ट करते हैं. रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट होता है और सिलेक्शन जब भी होता है तब इसमें सिलेक्ट करना होता है. रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट होता है. देखिए इसीलिए बताएं कि कुछ चीजें इसीलिए आईबीपीएस पीओ का आप या किसी भी रैंडम एग्जाम का, एक पीओ का भी जो गवर्नमेंट एग्जाम है उसका भी और एक प्राइवेट सेक्टर का भी तुम किसी का देख सकते हो. ठीक है, ज्यादा वेरियस डायमेंशन से तुमको आइडिया मिलेगा. Recruitment and selection is one of the major HR processes, one of the major HR activities which is undertaken by any human resource department of any organization. लोगों को हायर करना, procurement of people is the work of HR department. See, procurement of people is done in many ways. बहुत तरीकों से होता है, internal, external. वो हम बताएंगे. पहले समझिए कि रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन के बीच में डिफरेंस क्या होता है. रिक्रूटमेंट इज when you keep on adding the number of applicants
from various fields. That is known as recruitment. When you keep on adding as many number of CVs or as many number of applications, that is known as recruitment. But जितने लोग रिक्रूटमेंट के लिए एप्लीकेशन देते हैं, क्या उतने लोगों का सिलेक्शन हो जाता है? No. So selection is picking out the best or picking out the most eligible people who are suitable for that job. This is known as selection. For example, कॉलेज में कैंपस इंटरव्यू करने के लिए आती है, कैंपस इंटरव्यू करने के लिए आती है, मान लो बीकॉम के लिए आई, मतलब 1922 बैच के लिए आई, तो आप लोग भी एलिजिबल हैं उसके लिए, राइट? दैट इवन बीकॉम एंड बीबीए, ऑल दीज पीपल विल बी अलाउड कि आप अपनी सीवीज दे सकते हैं. सो एवरी वन ऑफ यू, ईच वन ऑफ यू विल गिव देम योर सीवी, बट योर सीवी विल बी स्क्रीन्ड देयर. दैट इज रिक्रूटमेंट. कि उन्होंने बोला कि आप एप्लीकेशंस डाल सकते हैं एलिजिबिलिटी के हिसाब से. बट देन व्हाट हैपेंस? देन they conduct an aptitude exam. Yes, they conduct an aptitude exam which consists of one section of tech paper and the other section of non-tech paper. In that exam, some students will not pass, some will be screened through the next round. The next round will be a group discussion round, right? Then group discussion. In group discussion, some will not get through and some will get through that round. Finally, those filtered people, they will be called for interview, right? They will be called for interview. Then there is interview. Even after selection of interview, if you have written something in CV, and you do not qualify by that, which means आपने कोई forgery की है, आपने कोई fake certificate दिया है, आपने लिख दिया कि 12th आपने यहाँ से किया और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे वो गलत निकल के आता है, तो क्या होता है? आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा. बहुत सारे एग्जाम्स में ये चीज होती है, लोग झूठ सर्टिफिकेट बना देते हैं. या फिर अभी कोविड के टाइम पे बहुत इशू हुआ था कि whenever you go for any final exam, you at least need, अगर ग्रेजुएशन लेवल का है तो ग्रेजुएशन का प्रोविजनल मार्कशीट चाहिए होता है. अगर मैनेजमेंट लेवल का है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग का, यानी कि MBA वगैरह के लेवल का है, then you need the final provisional marksheet for MBA. If you do not have that provisional marksheet, even if you were a bona fide candidate, your candidature will be cancelled. You will not be allowed. So everything which is written there in the recruitment form, the selection in the recruitment advertisement, is to be followed very, very strictly. Understood? Recruitment means taking as many number of candidates as possible through various sources. अब देखो, through various sources का क्या मतलब होता है कि कोई पोस्ट निकला, मान लो कि कोई इंटरनल एग्जाम, कोई एग्जाम होने वाला है, कोई एग्जाम होने वाला है किसी PSU में. You know ना कि internally also people are promoted. Internally department wise promotion भी होता है लोगों का, and people are hired from outside also. For example, SSC में इनकम टैक्स ऑफिसर तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी है, और टैक्स असिस्टेंट जो ग्रुप सी में रिक्रूट होके जाते हैं, ग्रुप सी में उनका भी इंटरनल प्रमोशन और एग्जामिनेशन के बाद वो इनकम टैक्स ऑफिसर बन सकते हैं. फाइन. मान लो कि इनकम टैक्स के लिए रिक्रूटमेंट आ रहा है, मान लो, दो these are done by central bodies like SSC and all. So मान लो कि रिक्रूटमेंट आ रहा है तो क्या होगा? They will invite applications from outside, that eligible people, this is the eligibility, and you apply for income tax officer. Also, there will be an internal notice in the organization. Okay, there will be an internal notice in the organization, and you will be required to people who are eligible, who will be required to sit in an exam, and if they pass and go through all the screen through all those processes, they will be chosen. ऐसा होता है.
सिलेक्शन का क्या मतलब होता है? जितने लोगों को रिक्रूटमेंट के लिए बुलाया गया, क्या उतने लोगों का सिलेक्शन होता है? नहीं। सम डू नॉट क्वालिफाई इन, जैसे रिक्रूटमेंट, मान लो ये IBPS PO का ही एग्जाम, ये PO का हम एग्जाम्पल इसलिए बार बार दे रहे हैं क्योंकि दिस इज द मोस्ट हर्ड एग्जाम अमंग यू पीपल। जानते हैं आप लोग तो थोड़ा समझ पाएंगे, रिलेट कर पाएंगे। रिक्रूटमेंट जब आता है, कितने लाख लोग फॉर्म भरते हैं ना, राइट? एंड इन टोटलिटी द सीट इज 10,000 के आसपास ऐसे होती है, लाखों लोग फॉर्म भरते हैं इसका PO का। तो रिक्रूटमेंट का क्या मतलब होता है? जितने लोग फॉर्म भरे उनको भरने दिया जाए, राइट? उस वक्त किसी टाइप का कोई सिलेक्शन नहीं होता है। आपने लिख दिया कि हाँ हम ग्रेजुएट हैं, आप झूठ भी लिख सकते हैं, पर आपकी मर्जी, आप लिखिए, आप एग्जाम दीजिए। कुछ वेबसाइट्स ऐसे होते हैं जो सर्टिफिकेट अपलोड मांगते हैं, लेकिन ये इस टाइप का एग्जाम नहीं मांगता है, या बहुत तरीके का एग्जाम नहीं मांगता है। इवन इफ यू क्लेम, स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए क्या होता है? स्पेशलिस्ट ऑफिसर भी एक पोस्ट आता है इसका। स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए क्या होता है? IT का, HR का, लॉ का, एग्रीकल्चर का, इन चीजों का स्पेशलिस्ट ऑफिसर का रिक्रूटमेंट आता है। तो उसमें एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग होती है। जैसे HR के लिए अगर निकला तो वो MBA in HR मांगेंगे। Your major paper, you should not have specialization more than 2 subjects, even if you have dual specialization, जैसे major minor होता है ना, if you have specialization, then your major subject should have weightage more than the minor subject। इस तरीके का कुछ क्राइटेरिया होता है उनका। आप झूठ भी लिख सकते हैं कि आप MBA हैं, आपने बस एग्जाम कैसा होता है देखने के लिए मान लीजिए आप भर दिए फॉर्म, बट इवन इफ यू पास दैट एग्जाम and you go to interview, मान लो you get screened to the interview, during document verification they'll eliminate you, right? So from recruitment का मतलब वो फॉर्म जितना भरने के लिए अलाउ किया, that is recruitment। वो रिक्रूट कर रहे हैं, they are allowing forms to be filled up from various sources, and जहां से एग्जाम स्टार्ट होता है, ये क्या प्रोसेस स्टार्ट हो गया? सिलेक्शन। समझ में आया? Recruitment is, I'll give you in writing, you just understand in this class. Recruitment is the process of inviting as many applications from various sources, as many possible various sources, कि जितने जगह से उस पोस्ट के लिए एप्लीकेशन आ जाए वो रिक्रूटमेंट कहलाएगा। बट सिलेक्शन इज selecting the best out of those. Recruitment and selection both are very, very important HR process. Why these are important process? Because only when good number of people have applied, the best out of them can be selected, isn't it? IIMs वगैरह में क्या होता है? Already बहुत अच्छे बच्चे को बहुत प्रोसेस से स्क्रीन करके ले जाया जाता है। They are all good students. There's a brand name attached to that, right? So there is no question कि वो अच्छे हैं कि नहीं है, वो अच्छे हैं लोग जानते हैं। Now the companies, when they will come, they will select the best out of the good, right? So only when you have recruited good number of people, you will screen the best out of them. Now, recruitment and selection both are important also because आप रैंडम किसी को उठा कर लेके आए काम करने के लिए, और जिसने अप्लाई किया, say for example here for HR faculty, I came for my interview, okay, I came for a demonstration class, so my demonstration class was with BBM second year, fine, I came for that class, so I'm showing my willingness now, I'm showing my willingness that I'm interested in this job. So there are few chances that I will leave immediately. Understood? There are few, because I have shown my own interest in joining this job, so there are fewer chances that I will leave immediately. That is why recruitment and selection is also important. Plus, recruitment will create a
pool of candidates. मैंने आपसे बोला कि रिजर्व लिस्ट में भी पीओ में लोग रखते हैं. मान लो, देखो ऑर्गेनाइजेशन में एमपीपी होती है, मैन पावर प्लानिंग. ठीक है, ये डिटेल्स में नहीं पढ़ना है, हम सिर्फ बताते हैं. Manpower planning means selecting the right people at right place at right time. If you are BCom and if I hire you for a 12th class work, I will be underutilizing your effort. Right? क्योंकि आप उनसे बहुत ज्यादा जानते हैं. Isn't it? That is why the right kind of people have to be at the right place in order for the organization to function with full efficiency. And when I say this, that reserve list, there's a provision for reserve list. Why is there a provision for reserve list? Suppose from the main list the students ran away. The employees ran away. They got better job opportunity somewhere else. तो वो चले जाएंगे छोड़ के. Immediately उतना रिक्रूटमेंट करना पॉसिबल है क्या? एक आईबीपीएस का पीओ का एग्जाम 1 साल का चक्कर हो जाता है. होता है ना? पहले एडवर्टाइजमेंट निकलेगा, फिर प्री लेगा, फिर मेंस लेगा, फिर इंटरव्यू लेगा, फिर उसका रिजल्ट निकालेगा, फिर उसका प्रोविजनल अलॉटमेंट करेगा, फिर ट्रेनिंग होगी. And after all the hassles that the body goes through, they will be leaving. Recruitment is a cost borne by the company. Always remember, recruitment, training, all these HR activities, they require a lot of money. And it's not just about IBPS. IBPS हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि हम इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि वो आप समझ पाएंगे. कैंपस इंटरव्यू का एग्जाम्पल लीजिए. ये जो अगर 6-7 लोग आते हैं, then these interviewers, they must be holding some good position in their life, in their organization, some good position. अब वो अगर आपका कैंपस रिक्रूटमेंट करने आते हैं तो उनको भी कुछ तैयारी करनी होती होगी, एक टीम तैयार होती होगी, एक पैनल प्रिपेयर होता होगा इंटरव्यू लेने का, राइट? 1 day's entire work is gone. उनका एक दिन का पूरा काम चला गया. हो सकता है कि ये जो लोग हायर किए, देखो कुछ छोटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि जिनकी की अपने ही लोग हायर करते हैं, बट देन देयर आर बिग ऑर्गेनाइजेशंस जो जिनका की हायर करने का स्पेशलाइज्ड बॉडी होती है. ठीक है, बहुत टॉप मैनेजमेंट के लिए जो हायरिंग वगैरह होती है उसके लिए दे आउटसोर्स द वर्क. सो इफ यू आर टेकिंग पीपल फ्रॉम आउटसाइड, यू विल हैव टू पे देम हेवीली रिक्रूट करने के लिए. आईबीपीएस में भी जो इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर्स होते हैं वो लोग कौन होते हैं? रीजनल एचआर, रीजनल मार्केटिंग हेड, बैंक्स के काफी सीनियर पोस्ट पे जो लोग होते हैं वो दे आर आल्सो पेड फॉर दिस इंटरव्यू थिंग. ओके, एंड दे आर गिवन द टाइम. इंटरव्यू कितना होता है? 3 दिन 4 दिन तक लगभग इंटरव्यू होता है सारे कैंडिडेट्स का लेने के लिए. आई मीन लगभग जितना सिलेक्ट होना होता है 3 times the people are called for interview. You know this ना? उतने लोगों का सिलेक्शन, उतने लोगों का इंटरव्यू किया जाता है. So there is a lot of money involved in the recruitment process. What will recruitment do? Recruitment will create a pool of candidates that you can use even later on. आप बाद में भी pool of candidates को यूज कर सकते हैं. कैसे? मान लीजिए वो छोटी, आपने सीवी कलेक्ट करके रखा हुआ है, आप किसी स्किल सेट के लिए आपने रिक्रूटमेंट निकाला, तो फॉर दैट स्किल सेट यू हैव टेकन आउट द रिक्रूटमेंट. अगर वो बंदा छोड़ के चला जाता है, इट्स इजी ना टू लुक बैक एट दैट सीवी कि आप फिर से उतना एडवर्टाइजमेंट देंगे, नहीं. इसीलिए रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड जब हम पूरी तरीके से सिलेक्ट कर लेते हैं, हम पूरा रिक्रूटमेंट प्रोग्राम देख लेते हैं, then there are 2-3 things that we analyze. What do we analyze? Cost per hire, we analyze time per hire, and we analyze quality of hire. Isn't it? हमने कोई प्रोग्राम निकाला, रिक्रूटमेंट प्रोग्राम है, हमने रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन का निकाला, हमें कैसा कॉस्ट लगा, क्या कॉस्ट हमारे बजट में था, डिड वी मेक इट अ गुड डील. Then other thing was time per hire.
कितना टाइम लगाया हमने, क्योंकि टाइम इज मनी इन बिजनेस। देन क्वालिटी ऑफ हायर, आपने जो क्वालिटी हायर की, क्या वो क्वालिटी ठीक थी, क्या हम उस वही क्वालिटी चाहते। I'll make you write all of this, Rohit. In the next class I'll make you write. In this class you just understand the lecture, one class lecture, so that क्या आप समझे, और दूसरे क्लास में पढ़ा हुआ तो लिखा हुआ तो तब समझोगे ना जब अच्छे से पढ़ लोगे। एंड देन क्वालिटी पर हायर, देखो कितने भी एग्जाम से आप स्क्रीन कर लो स्टूडेंट्स को, ये गारंटी नहीं देता है कि आपकी क्वालिटी परफेक्ट होगी ही होगी, because the individual differences come into being. एप्टीट्यूड टेस्ट का मैथ्स, रीजनिंग, प्रीलिम्स का क्वेश्चन क्या होता है, मैथ्स होता है, रीजनिंग होता है, इंग्लिश होता है, बस जनरल अवेयरनेस होता है विद स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग इंडस्ट्री, ये सब यू कैन लर्न इट एंड गिव एग्जाम, you can solve it and give exam. Still, your individual differences and your ability to work is something that no exam can judge. So there is always a dispute between how much should we rely on aptitude test and how much should we rely on interview. HR काफी manipulations और काफी interpretations के बाद इस चीज को डिसाइड करता है. There are few bodies, there are few organizations that give the written and interview weightage 80:20. कुछ organizations 90:10. जैसे MBA का एग्जाम होता है तो मैक्सिमम जो एग्जाम का वेटेज है एग्जाम, और कुछ ऑर्गेनाइजेशन 85:15 भी लेती है, यानी 80% रिटन का मार्क्स और 20% इंटरव्यू। और 90-10 का क्या मतलब है कि they are heavily depending upon written exams. नवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन मैनेजमेंट ट्रेनिंग का लेती है, ग्रेजुएट जीईटी करके आता है उसका, तो उसमें जो मास्टर्स डिग्री होल्डर होते हैं उनके लिए होता है ट्रेनिंग का, वो 90-10 देती है। कोल इंडिया 80-20 देती है, कुछ है बीएचईएल वगैरह है शायद, आई डू नॉट रिमेंबर इट करेक्टली, बट वो लेती है 85-15। So there are so the people, the scholars have always argued कि सिर्फ एम्प्लॉयमेंट टेस्ट से आप नहीं ले सकते, इंटरव्यू में आपका जजमेंट कैपेसिटी या आपका और ज्यादा एक्सपीरियंस, you have submitted a recruitment form, you have mentioned about yourself, but when you are sitting in front of me I can ask you further more questions, I can grill you more about personal details, more about I can see what is your judgment capacity, आपका टेम्परामेंट कैसा है, आपको मैंने किसी बात से उकसा दिया, आप उछक गए। ये इंटरव्यूज बहुत करते हैं, बहुत करते हैं, ठीक है। They will ask you questions that will that will ignite you, and you get ignited and you lost your score. जैसे when I was giving Neyveli Lignite Corporation चेन्नई में मेरा इंटरव्यू था, so the board were constantly शुरू से अंत तक they were like, फॉर्म में एप्लीकेशन फॉर्म में लिखना होता है कि you married or not, so क्योंकि अगर सिलेक्शन होता है तो बाद में जो रिटायरमेंट वगैरह का और पीएफ का जो पेपर वर्क होता है उसमें आपको नॉमिनी डिक्लेयर करना होता है, तो विदाउट दैट तो जनरली a married person will declare his or her spouse. So they constantly kept asking me, Chennai is a place which is too far from Patna. How will you work here? How will you work here? Being a woman, you can be posted in mines, you can be posted in outskirts. Okay. So how will you manage? There were 3-4 people in the panel. There were 5 people in the panel. 2 were constantly grilling me on this. Being a woman, how will you manage? How will you manage? So कोई परेशान हो जाएगा क्या, विमेन लगा के रखा है, एग्जाम पास करके आए ना, रिटन एग्जाम होगा कि नहीं ये चीज, राइट? क्या आप बार बार एक ही बात पूछे जा रहे हैं, भैया इंटरव्यू रिटन एग्जाम पास करके आए तो नौकरी करनी है तभी तो तो द इंटरव्यूज आर वेरी स्मार्ट एंड और फिर कन्विंस करने के बाद भी दे वर लाइक इट इज इजियर सेड देन डन. So they keep asking you these kinds of questions.
ओके, तो दे विल एंड जो जितना आप हायर लेवल का एग्जाम देते जाएंगे, जैसे ग्रेजुएट पे देंगे तो आपको थोड़ा इजी लगेगा, आप मास्टर्स पे देंगे तो वो थोड़ा और टफ होगा, आप उससे ज्यादा देंगे तो और टफ होगा, यूपीएससी का एग्जाम देंगे देन देयर इंटरव्यू इज ऑल अबाउट योर जजमेंट कैपेसिटी, योर पर्सनल स्किल्स, आप क्या परसीव करते हैं। ये रिक्रूटमेंट सिलेक्शन का क्लास है, इसीलिए हम आपको ये सब चीजें बता रहे हैं ना, खाली किताबी बातें जानना इज नॉट इम्पोर्टेंट, वो आप पढ़ लेंगे किताब से यूट्यूब लेक्चर ये वो से आप पढ़ सकते हैं चीजों को, but you should have a practical touch to everything. So, and every question that they ask is very simple question. किसी और को आप बताएंगे तो लोग ऐसे कहेंगे कि तो इसका तो आंसर है ना, मतलब हमारे पास अपना छोड़ के सबके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है ना, इन जनरल तुरंत सॉल्यूशन आता है। They will ask you the same questions, the same hacked questions, यानी same घिसा पिटा question they will ask you. Why should I hire you? Tell me something about your native place. Introduce yourself. इस तरीके के HR questions होते हैं, and believe me, these are the questions that you have to play very very wisely. You can turn the interview towards the direction that you want. आपके नेटिव प्लेस के बारे में, अगर नेटिव प्लेस में अगर कोई ऐसी जगह है जो आप हाईलाइट करना चाहते हैं, जिसके बारे में आपको पूरी जानकारी है, तो आप उस चीज को मेंशन कर दीजिए। दे विल डेफिनेटली आस्क यू वन क्वेश्चन फ्रॉम दैट, ठीक है। अब कोई गया से है, वो बोधगया मेंशन करेगा, आई कम फ्रॉम अ प्लेस व्हिच इज फेमस फॉर इट्स लैंड ऑफ बुद्धा, व्हाट डू यू नो अबाउट बुद्धा, उसके बाद वहां से शुरू हो जाएगा। ये होता है। इफ दे आर आस्किंग यू सेम क्वेश्चंस, वो तो सेम क्वेश्चंस कर रहे हैं, लेकिन आप 20 लोगों का आंसर सेम नहीं होगा। दिस इज वेयर यू हैव टू प्ले स्मार्ट। आपका वही व्हाई शुड आई हायर यू, आई एम वेरी स्मार्ट, आई एम वेरी हार्ड वर्किंग, ये सारी चीजें बहुत घिसी पिटी हैं, और उनको पता है कि उनको जो काम निकलवाना है वो तो आपसे निकलवा ही लेंगे, कॉलेज थोड़ी है। रतन टाटा का एक स्टेटमेंट था, आपने पता नहीं देखा कि नहीं। He went to school and there was a lecture that Ratan Tata was giving in school, and he said, I really like that lecture, and he said कि all of the students who are now saying कि मेरे टीचर्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं और मेरे टीचर्स बहुत खराब हैं, they have not yet seen their bosses. पाला नहीं पाया बॉस से, इसीलिए टीचर्स स्ट्रिक्ट और टीचर्स खराब लगते हैं। टीचर्स तो कुछ होते ही नहीं है जो बॉस करवाते हैं। ओके, you have to be thoroughly disciplined when you are working, और वो उनको भी पता होता है ना, वो आपको बिना काम करवाए छोड़ेंगे और ना आपका गुजारा है बिना काम किए, इसलिए तो that was about interview. So there is always an argument between how much weightage should be given to employment test and interview. Plus, there are other jobs where your physical fitness is very important. कुछ exams में your physical fitness is done before the test, and some after the test. The before the test is also fine. आप पूरा written qualify कर लिए, just to save you from the disappointment. लास्ट में आपका फिजिकली ही एग्जामिन होगा, और हर टेस्ट के बाद एक फिजिकल एग्जामिनेशन होता है फाइनल, वो भी सिलेक्शन का एक प्रोसेस है। अगर आप फिजिकली अनफिट पाए गए वहां पर, तो आपको हटा दिया जाएगा। मैनेजमेंट ट्रेनिंग्स का भी जो एग्जाम वगैरह होता है, ठीक है, यूपीएससी में भी कुछ दे हैव फ्यू जॉब्स, जैसे आईपीएस है ना, आईएएस के लिए यू डोंट हैव अ हाइट criteria, but for IPS obviously वो job वैसा है, aptitude वैसा है, you need a height criteria, right? For some other jobs you need to have a perfect eyesight, जैसे pilot Air Force का जो एग्जाम होता है उसकी आईसाइट, SSB का जो एग्जाम होता है वो कितना टफ होता है, जंपिंग इन ऑल। पुलिस का या फिर जिसका एग्जाम होता है उनको उतना दौड़ा करके देखा जाता है, यू आर फिजिकली फिट और नॉट। प्लस देयर आर अदर थिंग्स आल्सो। देखिए, आप कॉम्पेंसेशन पढ़ चुके हैं ना, आप कॉम्पेंसेशन पढ़ चुके हैं,
फिजिकल एग्जामिनेशन क्यों किया जाता है? सिर्फ फिजिकली अनफिट लोगों के लिए नहीं किया जाता है कि आपका आपने अंदर से झूठ बोल दिया और आपको आपकी आई साइट खराब है, हाइट, मोटापा या आई साइट, ये सारी चीजें दिखती हैं, बट यू कुड ऑल्सो हैव टीबी और वो तो पता नहीं चलेगा बिना एग्जामिनेशन. somebody could have AIDS, वो पता नहीं चलेगा. कोई और कंटेजियस बीमारी हो सकती है जो अगर वो मेंबर ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करे तो बाकी लोगों को हो जाए. और फिर वो क्या कर सकता है? he can do, बता सकते हैं, दिमाग लगाइए तो क्या दिक्कत होगी फिर? पढ़ा चुके हैं तुम लोग को हम. कोई बीमार है, पहले से बीमार है, ऑर्गेनाइजेशन में आकर के बीमार नहीं पड़ा, वो क्या क्लेम कर सकता है? वेरी गुड, कॉम्पेंसेशन. वो कॉम्पेंसेशन क्लेम करेगा ना कि हम भाई आ करके बीमार हुए हैं यहाँ पे, और कंपनी को काफी हैवी भुगतान करना पड़ जाएगा. एम्प्लॉयज कॉम्पेंसेशन एक्ट 1923, और उसका क्या है क्राइटेरिया कि 6 महीना कम से कम यू शुड हैव वर्कड इन द ऑर्गेनाइजेशन फॉर 6 months. वो कर सकता है ना क्लेम. अगर आप चेक नहीं करेंगे तो पता चला वो पहले से बीमार है और फिर ऑर्गेनाइजेशन में उसने बेनिफिट्स उठा लिया. सेकेंड थिंग, ही कुड हैव एनी कॉन्टेजियस प्रॉब्लम. कोई ऐसी बीमारी हो सकती है, टीबी की बीमारी बहुत कॉन्टेजियस होती है. अभी जितना जगह पे कोविड का जितना भी इंटरव्यूज हुआ है, इंटरव्यूज की वजह से जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग का जितना एग्जाम दिया गया था वहां पर कोविड का, हाँ, कोविड का सर्टिफिकेट मांगा गया 3 hours बिफोर, 72 hours पहले, वो भी एंटीजन टेस्ट नहीं, RT-PCR करवाना है. हाँ हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पहले से आपको कोविड है एंड देन यहाँ पे आकर के बाकी लोगों को भी कोविड हो जाए. टेस्ट होते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं. प्लस देयर आर सम jobs where your physical fitness is utmost importance. If you are a pilot, if you are Air Force, Army, Navy, right? Police. Good. Understood? So this much is for interview, this much is for employment test. Okay? Now, selection. After selection process, after the process, see, I will give you the steps of selection. You just have to write down and understand the steps of selection. After the entire process of selection, then what happens? You are given a contract of employment. Contract of employment. क्या नौकरी मिलने के बाद मान लीजिए आपने सारा प्रोसेस क्लियर कर लिया, आफ्टर दैट आर यू डायरेक्टली अ परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन? No, you're always kept on probation. So you are kept on probation for 2 reasons. One reason is that they want to first see how you perform. Maybe you're good at writing your aptitude test, but you're not good at performing. So that way, what will happen that you will be deployed to work that you are best suited with. Maybe you are not fit for the job you have been selected. और कोई भी recruitment process ये 100% ensure नहीं कर सकता है आपकी quality जब तक आपको रियल टाइम वर्क पे नहीं देखा जाए. एंड सेकेंड, फॉर डिटर्मिनिंग इफ यू हैव टू बी केप्ट ऑन प्रोविजन और नॉट. कुछ एरर्स अगर हो गई रिक्रूटमेंट सिलेक्शन प्रोसेस में, उस एरर्स को करेक्ट करने के लिए आपको रखा जाता है प्रोविजन में. आपने ज्वाइन कर लिया, उसके बाद कोई प्रॉब्लम हो गई, यानी आप परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, कॉन्स्टेंटली परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो प्रोबेशन से परमानेंट होने के लिए टेस्ट दिया जाता है, इंटरनल टेस्ट होता है. हालांकि वो टेस्ट इजी होता है पर कुछ लोग फेल भी हो जाते हैं, फिर उसको सेकंड चांस दिया जाता है. इवन इफ यू डू नॉट क्वालिफाई इट इन सेकंड चांस, सब कुछ करना बेकार है, आपको निकाल दिया जाएगा. ठीक है? तो दिस वाज अबाउट रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन. ट्रेनिंग के बाद भी टेस्ट? हाँ, ट्रेनिंग के बाद भी टेस्ट किया जाता है, क्योंकि कांस्टेंट एफिशिएंसी जरूरी होती है ना. ठीक है, constant efficiency is जरूरी, and I am telling you that always there is a chance of error creeping into the entire selection process. Still, ये वैसा हो सकता है. Okay, I have sent you have sent it in the group.
Okay, tell them Shilpa ma'am has asked to just once आप एक बार पढ़ लीजिए and you send it to me also. ठीक है, क्या है नहीं है तो हम देख लेंगे, एक बार देख लेना और अगले क्लास में थोड़ा सा उसको पढ़ के आना, बस देख करके कि क्या क्या होता है, तब हम सिलेक्शन का स्टेप्स भी बताएंगे तो समझ में आए. ओके, थैंक यू ऑनलाइन स्टूडेंट्स.